Hello everyone, I am Ibadur Rahman and this is your second part of the exercise 11A of class 9th mathematics. In this video, we will start from third question. Complete the following table. The measurements are in centimeter. Length, breadth, height are given. Find the volume. Volume is equal to length into breadth into height. So multiply all these three numbers, we get volume as a result. Same as here and here. Now, sixth part, volume are given, breadth and height also known. Find the value of length. So length is equal to volume upon width into height. दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, इससे आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा. और find the length of the diagonal of a cuboid whose dimension are L, B, H. L is equal to 2. B is equal to 3 and H is equal to 4. Substitute the value of length, breadth and height in the formula of length of diagonal. Let's see the formula of this question. Length of a diagonal of a cuboid is equal to under root L square plus B square plus H square. Substitute the value of length 2, breadth 3 and height 4 centimeter. After putting the value, calculate the result, calculate the number, you get result. Now question number 5. Find the length of the diagonal and volume of the cube whose edge are, sides are given. So length of diagonal is equal to under root 3 into side. इसमें लाके वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा. Find the volume of the total surface area of a cube if edge are given. Volume means a cube, side cube एंड टोटल सरफेस एरिया मीन 6a स्क्वायर. तो वॉल्यूम के लिए a क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए एंड सरफेस एरिया के लिए 6a स्क्वायर वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9. द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब इज 20 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ 6 फेस एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब. If the surface perimeter of one area, if one face is 20 centimeter, first find the length of the side. Perimeter of one face of a cube is 4 into side. So it is given 20 centimeter. So 4 side into 20. So side is equal to 5 centimeter. Total surface area of a cube is equal to 6 into side square. Side is equal to 5. So we write here 5 square. 5 square means 25. 6 into 25 is equal to 150 centimeter square. And we know that volume of cube is equal to side cube means 20 cube. Sorry, side is equal to 5. So write here 5 cube. 5 cube means 125 cubic centimeter is a correct answer. In question number 10, the area of a parallelogram is 4800 meter square. And its height is 1 centimeter. Area in meter square, height in centimeter. So change height also in the form of meter divided by 100. Volume is equal to length into breadth into height. Otherwise we can write area into height. Substitute the value of area 4800 and height is equal to 1 upon 100. Here 1 upon 100, 0 0 cancel out. 48 meter cube is a volume. And जो cost है वो 4.8 rupees के हिसाब से लगनी है. Total वॉल्यूम क्या है 48. सो 4.8 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 48 वी गेट टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 12. द इंटरनल डायमेंशन ऑफ ए बॉक्स इज 20, 16 and 24 centimeter. How number of cubes which can be kept in the box by 4 centimeter. 4 centimeter लेंथ के कितने क्यूब इसमें रखे जा सकते हैं. सपोज कर लीजिए जैसे ये एक बॉक्स है आपके पास और इसमें छोटे छोटे कितने क्यूब रखे जा सकते हैं ये मालूम करना है हमको. तो ऐसे जितने भी क्यूब रखे जा सकते हैं तो एक क्यूब का वॉल्यूम और जो बॉक्स का वॉल्यूम है, बॉक्स के वॉल्यूम को डिवाइड कर दें क्यूब के वॉल्यूम से. बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. मीन्स वॉल्यूम क्यूब है तो सेम होल क्यूब हो जाएगा. इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा. ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा ना. 4 5 20, 4 4 16 एंड 4 6 24. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 120 बॉक्सेस हो जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड आर इन द रेशियो 5:4:2. सो राइट इन द फॉर्म ऑफ L सपोज 5x, B 4x, H 2x. Total surface area is given 216.
We know that total surface area is equal to 2 in bracket LB plus BH plus HL. Now substitute the value of L, B and H. L is equal to 5 into 4, 20 x square plus 8 x square plus 10 x square. L into B into H means LB multiplied by BH plus H L. और सिंप्लीफाई कर ले 1 2 1 6 2 multiplied by 20 30 and 8 38 x square. X square is equal to 1216 divided by 2 multiplied by 38. ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम की वैल्यू निकालेंगे. ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 19, और अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. अब इसको 19 से डिवाइड कर देते हैं. 16 means x square is equal to 16. This implies x is equal to 4. Now x की वैल्यू मालूम हो गई. L is equal to 5 into 4 means 20. B is equal to 4 into 4 16 and H is equal to 2 into 4 8. तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, L आपको मिल जाएगा 20, ब्रेथ हो जाएगी 16 एंड हाइट हो जाएगी आपकी 8. LBH सब मालूम हो गया. अगर हमको LBH मालूम है तो हम यहाँ से वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, साइड मालूम करना होगा तो साइड मालूम हो गया है. इन क्वेश्चन गिवन दैट फाइंड लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. सो लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर. इट्स आंसर. Question number 15. How many rectangular block each 2.5 centimeter by 2 centimeter by 1.5 centimeter can be packed in a box of 90 centimeter by 78 centimeter by 42 centimeter? Internal measurements. How many 4 centimeter, वो बात की बात है. सबसे पहला काम, फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक क्यूब के फॉर्म में है, क्यूबाइड है छोटा, और एक ये बॉक्स की डायमेंशन है. सबकी डायमेंशन दी गई. आपसे पूछा है इस तरीके के कितने बॉक्स इसमें रखे जा सकते हैं. तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये बॉक्स बिग वन एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर वन. सो इसके लिए हमने कैपिटल LBH का वर्ड का यूज़ किया है और इसके लिए स्मॉल लेटर का यूज़ किया है. सो LBH अपॉन LBH. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डायमेंशन 90 78 42 एंड हियर 5/2 2 एंड 3/2. इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो नंबर ऑफ ब्लॉक आपको कितने मालूम हो गए, 39312. अच्छा, ये इतना हो गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका जो है वो ज़रा सा इंपॉर्टेंट है, समझना है. उसमें उन्होंने कहा है हाउ मेनी 4 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी प्लेस्ड इन दिस बॉक्स विथ फेस पैरेलल टू ईच अदर. अब देखिए इसकी जो डायमेंशन थी वो आपकी 90 8 एंड 42 है. 4 सेंटीमीटर फेस है. तो सपोज कर लीजिए जैसे ये आपका, ये सपोज कर लीजिए 90 है. तो 90 में अगर 4 सेंटीमीटर बॉक्स रखा जाएगा तो फर्स्ट 4 सेंटीमीटर, सेकंड 4 सेंटीमीटर, थर्ड 4 सेंटीमीटर, तो हम कहाँ तक आएंगे, 88 सेंटीमीटर तक आ जाएंगे. 2 सेंटीमीटर तो बच जाएगा ना, ये 2 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पे बचा रहेगा. तो अब जो यूज स्पेस हुआ वो 90 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, 90 डिवाइडेड बाई 4, तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमने कितनी डायमेंशन का यूज़ किया है. कितनी डायमेंशन का यूज़ किया, 88 डायमेंशन का, 88 सेंटीमीटर डायमेंशन का. तो नेक्स्ट फिगर के लिए जो मेथड अप्लाई होगा वो साइड ऑफ क्यूब, फिर से वही बॉक्स की डायमेंशन बदल जाएगी. जो बिगर बॉक्स है 88 76 40, क्योंकि अब हमको ये भी देखना है कि उसमें 4 सेंटीमीटर की डायमेंशन के अकॉर्डिंग आना चाहिए. तो फर्स्ट डायमेंशन में से 90 सेंटीमीटर थी, 88 तक फिल होगी. सेकेंड डायमेंशन 78 में से 76 तक ही यूज़ होगी क्योंकि 4 से डिवाइड होता है. एंड 42 सेंटीमीटर वाले को सिर्फ 40 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि वो भी 4 से डिवाइड होता है. 42 4 से डिवाइड नहीं होगा, वो स्पेस उतना आपका फ्री रहेगा. नाउ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर बॉक्स. इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 4180. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. अब कह रहे हैं किसी टैंक में कोई ब्लॉक डाला गया, बताइए वाटर लेवल कितना ऊंचा हो जाएगा.
तो जितना ब्लॉक का वॉल्यूम होगा वही तो राइजेस वाटर का भी वॉल्यूम होगा, जितना वाटर ऊपर गया उसका वॉल्यूम, और जो ब्लॉक का वॉल्यूम है वो सेम होगा। तो ब्लॉक के वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यूज़ कर दिया। जो वाटर टैंक का ऊपर होगा तो टैंक की लेंथ एंड ब्रेथ नहीं चेंज होगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, वाटर लेवल की हाइट में चेंज आएगा। सो लेंथ ब्रेथ सेम इंटू हाइट, यहाँ से हाइट का चेंज निकालना है कितना आएगा। एच की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लीजिए, 48 मल्टीप्लाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 72 एंड 60। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर हाइट उसकी इंक्रीज हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। Now question number 17, find the volume of a wood required for making the closed box with internal dimension 20 cm, 12.5 cm by 9.5 cm, wood 1.25 cm thick। अब इसमें इन्होंने बोला है कि जो इंटरनल डायमेंशन है वो 20, 12.5 और 9.5 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस है वो 1.25 है। थिकनेस कितनी है? 1.25। अब इस टॉपिक को पहले समझते हैं, उसके बाद सोल्यूशन पे आते हैं। सपोज कर लीजिए ये आपकी इंटरनल डायमेंशन है, अंदर अंदर से कितनी है, ये सपोज कर लेते हैं 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये थिकनेस है। तो अब जब हम किसी भी ब्लॉक को बाहर से मेज़र करेंगे तो ये और ये इंक्रीज हो जाएगा दोनों में। ये लेंथ कितनी है? 1.25 एंड ये लेंथ कितनी है? 1.25। दोनों साइड लेंथ में इंक्रीज हो गया, तो लेंथ में टोटल कितना चेंज हो जाएगा? लेंथ में हो जाएगा 20 प्लस 1.25 प्लस 1.25, मीन्स हम इसको कह सकते हैं 20 प्लस 2.50। ओके, सेम एज लेंथ में भी 2.50 ऐड हुआ, ब्रेथ में भी 2.50 ऐड होगा एंड हाइट में भी 2.50 ऐड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा लेंथ को ऐड कर दिया गया, लेंथ 20 ऑलरेडी गिवन एंड थिकनेस, दोनों साइड की थिकनेस ऐड हो गई 2.50। अभी नीचे बताया कैसे, 20 प्लस 2.50 टोटल आउटर डायमेंशन ये हो गई, ब्रेथ में भी 2.50 ऐड हो गया एंड हाइट में भी 2.50 ऐड कर लिया जाएगा। तो आपको एक्सटर्नल डायमेंशन मिल गई 25.50, 15 एंड 12। इंटरनल डायमेंशन ये, एक्सटर्नल डायमेंशन ये। तो अगर हम एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल दें और इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर दें तो जो भी आएगा वो वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 12.50 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 12। ये कैपिटल एल बी एच की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, माइनस स्मॉल एल बी एच की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इतना ट्राई ज़रूर करिएगा, आप कैलकुलेशन करिए, देखिए कितना रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। कैपिटल लेटर के लिए कैपिटल वैल्यूज रख दीजिए और स्मॉल लेटर के लिए ये सारी वैल्यूज रख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अ फील्ड इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर ब्रॉड। A pit 6 meter long, 4 meter wide and 3 meter deep is dug out from the middle of the field and the earth removed is evenly spread over the remaining area of the field. Find the rise in level of the remaining part of the field in centimeter correct to the 1 decimal place. अब इन्होंने क्या कहा है, एक फील्ड है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ मालूम है 30 एंड 18 मीटर। सपोज ये आपकी फील्ड है, ठीक, ओके, ये कोई फील्ड है। इसमें से एक यहाँ से एक मिट्टी को निकाला गया है, कोई गड्ढा बनाया गया, उसमें से मिट्टी को निकाल दिया गया, ओके। तो जो भी मिट्टी निकाली गई उसको यहाँ पर लेवल कर दिया गया, तो जाहिर सी बात वो उतने पोर्शन पे तो नहीं जाएगी ना जहाँ से निकाली जा रही। जैसे सपोज कर लीजिए आपने कुआं देखा होगा, कुएं से कोई मिट्टी निकाली गई और उसके चारों तरफ फैला दी गई, तो वापस कुएं में नहीं डाली जाती ना, तो वो उतने एरिया कम हो गया जितनी दूरी में कुआं बनाया गया था। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, वो शेप आपका क्यूबाइड शेप में, तो क्यूबाइड शेप का वॉल्यूम एरिया माइनस कर देंगे, सरफेस एरिया, ऊपर की लेंथ एंड ब्रेथ को हम माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ऑफ जो क्यूबाइड पोर्शन सरफेस एरिया है उसका, तो एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस एरिया ऑफ ये डिग 6 इंटू 4 इंटू हाइट, मतलब वो जिस लेवल तक मिट्टी को फैलाया गया है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ पिट कितना है? 6 इंटू 4 इंटू 3 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, सॉल्व करके हमको h की वैल्यू मालूम हो जाएगी। आपसे पूछा जा रहा था h की वैल्यू क्या होगी। इट इज योर कंप्लीट सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23। अब इन्होंने बोला है 8 सेंटीमीटर क्यूब के 2 ब्लॉक को अटैच कर लिया गया। अब जो शेप बना उसका सरफेस एरिया बताइए क्या होगा। अगर ये फर्स्ट क्यूब है 8 सेंटीमीटर, सेकेंड क्यूब 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो गई 8 + 8 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। अभी भी हाइट में नहीं चेंज हुआ, ब्रेथ एंड हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ लेंथ चेंज हो गई 8 + 8। इस तरीके का क्वेश्चन क्लास 7th में भी था आपका। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB + BH + HL। इसमें ला के सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। L 16 × 8 + 8 × 8 + 8 × 16। यहाँ पे जब वैल्यू आप रखिएगा तो आपको मिल जाएगा 16 × 8 + 8 × 8 + 8 × 16। अब सॉल्व कर लीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। इट इज गिवन दैट इफ XYZ इज द सरफेस एरिया ऑफ एडजेसेंट साइड। सरफेस एरिया में जैसे ये साइड है तो इसका सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, लेंथ एंड ब्रेथ आएगा। ऐसे एक साइड इधर होगा तो इसके सरफेस एरिया में क्या होगा, लेंथ एंड हाइट आ जाएगी। एक साइड इधर होगा, इसका सरफेस एरिया कुछ हो जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया अगर x दिया है तो L × B, ये सपोज कर लीजिए B है, ये H है, L B H, ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये L होगा, ये L होगा। तो L × H, B × H और L × B। तो सपोज x इज इक्वल टू L × B, y इज इक्वल टू B × H एंड z इज इक्वल टू H × L। सबको मल्टीप्लाई कर लें तो x × y × z, XYZ एंड LB BH HL सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो L² B² H² सो XYZ इज इक्वल टू L² B² C², अदरवाइज वी कैन राइट LBH होल स्क्वायर। We know that LBH is equal to volume, so LBH square means volume square, so V square is equal to XYZ। यही शो करना था। A metal cube edge of 12 cubic and 12 centimeter is melted and formed into 3 smaller cube. If the edge of 2 smaller cube are 6 and 8 centimeter, find the edge of the third smaller cube। वॉल्यूम सेम होता है तो जो बिगर क्यूब है उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब। So volume of bigger cube is equal to A cube and volume of smaller cube is equal to suppose V1, V2, V3. So A1 cube, A2 cube, A3 cube. A1 is equal to given 12, so volume 12 cube. A1 6 cube, A2 8 cube, A3 cube निकालना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 12 × 12 × 12 करके यहाँ पे वैल्यू 6 × 6 × 6 एंड 8 × 8 × 8 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। इधर की वैल्यू से A क्यूब की वैल्यू मालूम हो जाएगी। देख लीजिएगा A की वैल्यू आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। आई थिंक A की वैल्यू मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर। चेक करके देख लीजिए एक बार। इतने क्वेश्चन भी अगर आप लोग बहुत अच्छे से लगा रहे थे तो ये मान लीजिए कि चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। बट हर क्वेश्चन को खुद से लगाइए, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता हूँ क्योंकि कुछ काम आप अपने से करिए तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने खुद सॉल्व किया है। धीरे धीरे वो काम होता जाएगा। एग्जाम्पल सब देखते रहिएगा, उसमें से कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Now next video we will start exercise 18B. Thank you everyone. Goodbye.